Hello everyone, this is Neetu Singh Rajput, your session coordinator. I welcome you all on today's interactive live session on the topic to Corona crisis, that is leading crisis right now that we all are facing, health and wealth, that is business aspects, which is going to be have a whole soul comprehension by our two expertise consultant, that is Dr. Anil Kumar Gupta and Dr. Ajay Shesh. Now, I'm going to hand over the whole soul session to today's host, Mr. Sarvesh Pandey sir, on A to A, that is Agas se Anjam tak. Thanks a lot, Ms. Nitu. And I just want to know that आप सब अभी सुन पा रहे हैं? Are we audible to everyone? जितने लोग भी अभी हमारे साथ हैं, मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल A to A आगाज से अंजाम तक में। एंड आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब ने हमारे मैसेजेस में जो भी देखा, हम जितने भी आपके पास हमारे नोट्स पहुंचे, उसमें आपने देखा कि A to A with A2, यस, A to A with A2। आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनके लाइफ में, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट A2, डॉक्टर अजय शेष सर एंड डॉक्टर अनिल गुप्ता सर, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ों पे काम किया। डॉक्टर से फिर लाइफ स्टाइल पे काम किया लोगों के, फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उनके रिसर्चेस काफ़ी हैं जिनके बारे में आगे आने वाले समय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो सेशन हो जाए डॉक्टर अनिल सर एंड डॉक्टर अजय सर का, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर मिस नीतू राजपूत जी को कि आप प्लीज़ डॉक्टर अनिल सर का एंड डॉक्टर अजय सर का एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो हमारे सारे दर्शकों को दिखाएं। Hello everyone. Today we are going to know about a very brilliant, successful, dynamic and humble personality. He was born on 28th Feb 1977 in a middle class family of Kathal district, Haryana. He was very promising since childhood and also had an interest in sports. In childhood, when he used to go to hospital with his grandparents for their treatment, he observed that there were long queues of patients. He felt their sufferings, which in his conscience raised many questions, such as the lack of hospitals and doctors in India. He made his aim that he would work hard and will make himself a successful doctor, and he will spend his life in giving better health with easiness to people. But being from a middle class family, he faced many difficulties. Sometimes lack of money, sometimes lack of resources, sometimes people taunted that doctors are made in rich families only. Because of such things, lot of challenges came in his life, but all the difficulties faded before his passion to become a doctor. The journey from Kathal to Chandigarh started, where he studied hard and qualified the AIPMT exam. Then he started the journey from Chandigarh to Chhattisgarh. Here, he started his MBBS studies. After hard work and dedication, he achieved the tag of MBBS doctor. But he wanted to become an eye specialist, for which he needed to study more, needed to work hard. Lack of money, lack of resources. This time, the problem was much bigger. But again, ahead of passion, was it lost. His hard work and on the strength of confidence, he passed the AIPG exam and completed his MS degree.
and became a skilled eye specialist. In 2007, he started with a small clinic with his friend Dr. Vinay Jaiswalji. After that, together they built Sri Ganesh Vinayak Eye Hospital, the largest in Chhattisgarh. With a dedication to work and a sense of health to the people, he also made a tremendous record, that is, highest number of cataract surgery performed in 2013-14 of individual capacity in Chhattisgarh. Gradually, his efforts started paying off, and 4 more branches of Sri Ganesh Vinayak Eye Hospital started in Ambikapur, Korba, Chapa and Dhamtari. Sri Ganesh Vinayak Eye Hospital also got the honor of the first NABS certified hospital in Chhattisgarh. In the research of 10 to 15 years of his medical career, he found that the 21st century has become the century of SAD syndrome. It means the century of stress, anxiety, depression and diseases, and root causes are hurry, worry and curry. He observed 85% of people have psychosomatic or lifestyle related diseases, and for the treatment, other sciences will also have to be integrated with medical science. To understand these sciences, he completed his PhD in Vedic Science and Psychoneurobics from YSM University, Florida, USA. After having a thorough knowledge of medical science, Vedic science and psychoneurobics, he created a unique concept and established Positive Health Zone in 2017. Positive Health Zone is proving very useful in fighting the biggest problem of the 21st century, that is SAD syndrome. Its aim is to provide better health to common people, mental health to a common family, and to take people towards a complete health by creating harmony between mind, brain, body and soul, so that the lives of people of all classes, all ages can be happy and the whole family will get health and happiness. This story of ordinary to extraordinary, person to personality is of famous consultant eye surgeon of Chhattisgarh, director of Sri Ganesh Vinayak Eye Hospital, the founder, director Positive Health Zone, Dr. Anil Kumar Gupta. Due to Dr. Anil's incomparable hard work and dedication, he was awarded many honors, such as Chhattisgarh Gaurav Award by Honorable Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel ji, Unique Business Practices Award by Honorable Former Chief Minister Mr. Raman Singh ji, 7th Global Healthcare Excellence Award by Honorable Mr. Ashwin Kumar Chaubey ji. Today, his profiles say a lot about him. Dr. Anil completed MBBS and MS Paco Fellow Shankara Nethralaya Chennai, and now he is a consulting eye surgeon. Completed PhD in Vedic Science and Psychoneurobics, and now he is a holistic healthcare consultant. He is NLP and PNP master trainer. He has introduced unique concept of MBBS integration. MBBS means mind, brain, body and soul. He is an entrepreneur and social welfare influencer. He has presented various papers and research material in national and international conferences, clinical hypnotherapy and integrated medicine. He is a Guinness Book World Record holder in longest marathon speech by the team of 2. Under the campaign of My Health, My Responsibility, My Life, My Responsibility, My Society, My Responsibility. He is associated with many spiritual and holistic health traditions in India like Shiva Yoga, Brahma Kumari, Art of Living, Sikfa and many more. Dr. Anil, with his dynamic and versatile personality, is also an active member of Business Network International and a Smart Entrepreneur Group, and he spent his time efficiently between his medical profession as an eye surgeon and also as a doctor of holistic health approach through Positive Health Zone. Let's have a glance on mission, values and vision of Dr. Anil. Mission of Dr. Anil is to uplift and transform society by creating health and happiness in every aspect of life. Values of Dr. Anil and his team: unity and teamwork, passion and commitment, challenging status quo, big ideas with out-of-the-box approach to different things and do things differently. Dr. Anil's finest dream is to make the first completely integrated healthcare city where people will find the unique integrative approach of modern medical system with ancient Vedic system, Western science with Eastern science, physical science with metaphysical sciences, treatment sciences with healing and cure sciences, with overall goal of 7-dimensional development and many more. Dr. Anil is the true inspiration for youth and society. He is a pure soul and a great life symbol of humanity. Thank you.
नहीं कि हम एक दिन मर जाएंगे, बात यह है कि जब तक मरे नहीं तब तक जिए कैसे। बम की तरह मत फटो। बम एक बार वो भयंकर आवाज करता है और फिर पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है। बम में भी वही बारूद रहता है जो कि एक रॉकेट में रहता है, पर रॉकेट में उसी बारूद को, उसी आक्रोश को जब चैनलाइज किया जाता है तो किस तरीके से ऊपर जाता है रॉकेट। वो रॉकेट बनो, वो बम मत बनो। So let's welcome Dynamic A2s on our channel A2A. आप दोनों का, डॉक्टर अजय सर एंड डॉक्टर अनिल सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। एंड आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों लाइव आ जाए। एंड यस, जहां तक मोस्ट वेलकम सर, दोनों लोग को मेरे तरफ। सर्वेश, गुड मॉर्निंग sir. It's good afternoon sir, so from my side is good, very warm good afternoon to you sir, and to you also Ajay Seth sir. And we are lucky that two dynamic A2s are here. And sir, अभी जैसे ही हमने आपका वीडियो देखा, टू इंस्पायरिंग सर, टू इंस्पायरिंग। एंड मैंने आप लोग के स्टोरीज भी देखे हैं। सो आप लोगों ने आज तक पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। सो वी आर वेरी लकी दैट वी आर गोइंग टू लिसन यू टुडे। एंड यस, मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि आज A2A पे दो डायनेमिक A2, जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने डॉक्टर अनिल सर एंड डॉक्टर अजय शेख सर मौजूद हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम मुद्दा है, टू कोरोना क्राइसिस। फर्स्ट वन इज हेल्थ, सेकेंड वन इज बिजनेस। बिजनेस को कहीं ना कहीं मैं जीविका से देख रहा हूं। बाहर निकले तो जान की प्रॉब्लम, घर में रहे तो जीविका की प्रॉब्लम। सो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। एंड इस पैंडेमिक के अंदर सर आप लोगों ने प्रूव किया है कि हेल्थ को भी बेटर कैसे बनाया जा सकता है एंड जीविका को भी हर सिचुएशन में बेटर कैसे बनाया जा सकता है। दैट इज वाई A2A इनवाइटेड यू टू सर। सो आई रिक्वेस्ट, आपका अगर परमिशन हो तो आज क्या हम अपने आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें सर, और हमारे दर्शकों तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचाएं, मैक्सिमम चीजें पहुंचाएं, जिससे वो भी अपने जीवन और जीविका को बेहतरीन कर सके सर। जी हाँ, बिल्कुल। मैं डॉक्टर अजय शेष, नमस्कार डॉक्टर अनिल गुप्ता, मैं डॉक्टर अजय शेष सभी जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनका स्वागत करता हूँ, और डॉक्टर अनिल गुप्ता को भी मैं अभिवादन करता हूँ। और आज का ये खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे, और ये मौका मुझे देने के लिए कि इतने अच्छी ऑडियंस को के साथ मैं आज बातचीत कर सकूं, और आज के इस खूबसूरत सुबह को, रविवार की इस सुबह को हम चरितार्थ कर सके, आपके लिए बहुत बहुमूल्य बना सके, उसके लिए आप सभी का और डॉक्टर अनिल गुप्ता का खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ। A2A सर, ये आइडिया सर पिछले हफ्ते आया जी। पिछले हफ्ते A2A टीम ने हमसे बात किया और उन्होंने कहा कि सर आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डॉक्टर अजय शेष सर के साथ होलिस्टिक हेल्थ विषय पर बात की थी जी। लेकिन सर अभी कोरोना समय में अभी दो क्राइसिस हैं, एक हेल्थ और एक बिजनेस। तो उनके एग्जीक्यूटिव चाहते थे कि ये दो विषय, आप हेल्थ पर बोलते हैं यानी कि डॉक्टर अनिल मैं, और आप सर बिजनेस की मास्टरी है आपको जी। तो मुझे लगा कि यस एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, इसीलिए कल मैंने आपसे बात किया और आपने समय भी दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं आज का ये सेमिनार, आज का ये सेशन सर्वेश पांडे A2A चैनल को A2A
यस सर। हाँ, तो मेरी और डॉक्टर अनिल की तरफ से ये सर्वेश जी को ये अनुरोध है कि यस आज के कार्यक्रम की और सवालों के बौछार की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। यस श्योर और सर। सर। डॉक्टर अनिल बिल्कुल जो है तैयार है। यस सर। थैंक्स अ लॉट सर, आप दोनों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल A2A में। एंड जैसा कि हमारा थीम था इस सेशन का सर कि थ्रू कोरोना क्राइसिस, जीवन और जीविका, बाहर निकले तो जान की प्रॉब्लम, घर में रहे तो जीविका की प्रॉब्लम। एंड हमारे दर्शक बहुत उत्सुकता से इस पहले सवाल का, इस पहले जो हमारा सवाल है, इनिशिएटिव जो हमने लिया एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों लोग इस पर प्रकाश डालें। एंड फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर अनिल सर कि सर जीवन एंड जीविका आपने कैसे इस पैंडेमिक टाइम में सारी चीजों को कंट्रोल किया सर? सो एंड देन अजय शेष सर। यस सर। यस डेफिनेटली। सर्वेश, देखिए जो ये Yes, sir. समय चल रहा है, कोरोना क्राइसिस, पेंडेमिक, सभी के लिए पेनफुल है और ये अनवांटेड चीजें हैं जो लाइफ में आती रहती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पार्टिसिपेंट्स के साथ कि जैसे Yes, ही sir. कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ, मैंने कुछ देर अपने साथ बैठकर सारी सिचुएशन को एनालाइज किया, समझा कि ये जो सिचुएशन आ रही है ये मेरे ऊपर और मेरे बिजनेस के ऊपर और मेरी हेल्थ के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट ला सकती है। जैसे ही ये क्वेश्चंस मैंने अपने आप से पूछे, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिलने शुरू हुए। डेफिनेटली फियर का माहौल पूरे वर्ल्ड में है, तो मुझे भी लगा कि यस, ये तो एक फियरफुल कंडीशन है और माइंड ने बहुत सारे फियर मेरे सामने खड़े कर दिए। कुछ देर के लिए शायद मेरे माइंड ने मुझे भी स्ट्रेस दिखाया, लेकिन अगले ही दिन जब मैं मेडिटेशन के दौरान अपने माइंड से मैंने वार्तालाप किया तो उसने बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे बताए, बहुत सारे पॉजिटिव इंसाइट मुझे दिए। मुझे बताया कि नहीं, ये समय क्राइसिस का जरूर है, लेकिन ये समय आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड में जाने का है। ये समय अपने आप को अपने ऊपर वर्क करने का है, अपने बिजनेस को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए प्रिपरेशन का समय है। हो सकता है कि मार्केटिंग सेल्स अभी अच्छी ना हो, लेकिन आप अपने बिजनेस के इनसाइड पे काम करोगे। और ये दोनों इनसाइट जब मुझे मिली कि यस, ये टाइम है अपने ऊपर काम करने का, अपने बिजनेस पे काम करने का, तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठकर डिसाइड किया कि हम बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, स्टाफ का मोटिवेशन रखेंगे और ऑनलाइन सिस्टम को स्टार्ट करना होगा। तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए। इनफैक्ट आई सर्जरी में, हॉस्पिटल में भी हमने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की, साइड बाय साइड अपनी हेल्थ, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो फिर बिजनेस तो आप कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने अपना रीशेड्यूलिंग किया अपनी दिनचर्या का, कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक मेरा दिन अब कैसे जाएगा, जो एक्स्ट्रा समय है मेरे पास उसमें मैं क्या क्या करूंगा, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए, लाइफस्टाइल पर ध्यान रखते हुए, और कुछ एक्स्ट्रा समय जो मुझे मिल रहा है उसमें मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं लोगों की लाइफ में। मैंने कुछ कोर्सेज शुरू किए। तो इस तरीके से मैंने अपनी दिनचर्या को और अपने बिजनेस को रीप्लान किया और आज ये नतीजा है कि दोनों चीजें बहुत अच्छे से मैनेज चल रही हैं, हेल्थ भी और बिजनेस भी। थैंक्स अ लॉट सर। सेम क्वेश्चन मैं डॉक्टर अजय शेष सर से भी पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे जीवन और जीविका को मैनेज किया सर इस पैंडेमिक के टाइम में, और भी चल भी रहा है। सो आई वांट योर गाइडेंस आल्सो सर। जी हाँ, थैंक यू फॉर दिस वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जब अगेन शुरू, हर एक व्यक्ति ने अलग अलग ढंग से रिएक्ट किया। कुछ लोगों ने बड़े कूलली रिएक्ट किया, कुछ लोगों को लगा कि चलो अब कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। मुझे जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ और मुझे जब समझ में आया कि ये तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है, तो मुझे मेरे जो इनिशियल गुरु थे संतोष नायर सर, उनकी कही हुई जो है 2 बातें मुझे याद आई। पहली बात तो यह है कि जब अच्छा समय आता है, इंसान के जिंदगी में अच्छा समय और बुरा समय दोनों आता है। जब अच्छा समय आता है, वो भले इंसान के जीवन में हो या पूरी दुनिया के जीवन में, जब अच्छा समय आता है तो हमारी ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। किसी की जिंदगी में जब अच्छा समय आता है, पैसा अच्छा आता है, कारोबार अच्छा चल रहा होता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, सब जब अच्छा समय आता है तब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ यानी कैसी? जब अच्छा समय चल रहा है, अच्छा पैसा आता है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे है? नया मकान बन जाता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। नई घड़ी आ जाती है, सोने की घड़ी शायद आ जाए, महंगी घड़ी आ जाए, एक्सटर्नल ग्रोथ। नई गाड़ी आ जाए, एक्सटर्नल ग्रोथ। फॉरेन ट्रिप हो जाए, एक्सटर्नल ग्रोथ। नए कंप्यूटर गैजेट्स हो जाए, एक्सटर्नल ग्रोथ। जब अच्छा समय आता है
तब अधिकतर लोगों की एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जब बुरा समय आता है तब इंटरनल ग्रोथ होती है। और ये अच्छा और बुरा समय, ये नेचर का रूल है, जैसे दिन और रात, राइट? जैसे सूरज की तरफ चारों तरफ जो है धरती चक्कर काटती है, वैसे ये अच्छा और बुरा समय किसी न किसी रूप में, एक दिन के अंदर भी दोनों अच्छे और बुरे समय आते हैं, एक दशक में अच्छे और बुरे समय आते हैं। तो ये बुरा समय आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें इंटरनल ग्रोथ होती है, क्योंकि व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों को डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कुछ अलग ढंग से कहा, लोग सोचने पर मजबूर हो गए। ये मार्च से जब से अभी तक यहाँ पर आया, आपको पता चला होगा, जिंदगी के मायने बदल गए, हमारे पोजीशंस के मायने बदल गए, धंधे के मायने बदल गए, सब कुछ बदल गए। तो इंटरनल ग्रोथ क्या हुई? मुख्य बात यह है कि इंटरनल ग्रोथ क्या हुई। खुद मैं और डॉक्टर अनिल गुप्ता काफी समय से अक्सर बातें करते रहते थे कि भाई ऑनलाइन सिस्टम शुरू करना है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू करना है, क्योंकि हम अपने शहर तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, जितने लोग फिजिकली आ सके हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, लेकिन व्यस्तताओं के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो इंटरनल ग्रोथ आई, तो क्या हुआ कि फिर से नए सिरे से टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। अब यहाँ पर बैठ करके डॉक्टर अनिल भी रो सकते थे, मैं भी बैठ करके रो सकता था, लेकिन जो इंटरनल ग्रोथ ही वो ये हुई थी कि अब क्या कर सकते हैं, धंधे में क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ मुझे वो सीखने को मिला। ऑनलाइन सिस्टम्स, ट्रेनिंग सिस्टम जो मैंने सिद्धार्थ राजशेखर से सीखा, अभी गोपाल कृष्णन जी से सीख रहा हूँ, जो दूसरे इससे कि किस प्रकार से कोई ब्राजील में या यूएस में बैठ करके भी लाइव मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है, और कोई लिमिट ही नहीं, कोई बाउंड्री लाइन ही नहीं, कोई विस्तार है उसके। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी सीखने को मिली, जो शायद संभव नहीं होता अगर ये पैंडेमिक नहीं आता। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि ये साइक्लिक दौर आगे भी चलता रहेगा, आगे भी किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में या पूरी धरती पर ऐसा कोई ना कोई समय आएगा जो अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। अच्छे समय में एक्सटर्नल ग्रोथ का आनंद लीजिए, बुरे समय में इंटरनल ग्रोथ कीजिए, और आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूटीफुल आंसर सर। ये इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ का जो आपने बात किया, काफी प्रेरणादायी था सर ये सोच। एंड डेफिनेटली हम लोगों को इस पैंडेमिक को इसी तरीके से लेना चाहिए, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। बुरे समय में हमेशा इंटरनल ग्रोथ होती है, एंड जब हमारा अच्छा समय होता है तो उस समय एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अनिल सर फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। सेकेंड जो हमने देखा है सर कि पैंडेमिक में हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बहुत डाउन गया है, बहुत ज्यादा डाउन गया है, जिसका कारण कहीं ना कहीं करियर है। मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था सर, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, जॉब में थे, बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी के या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं रुक गई हैं। एंड 6 या 7 महीने से वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए सर, जिसके वजह से जब उनको सैड सिंड्रोम, जैसा कि अनिल सर बोलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीज, सर बहुत सारे बच्चों में मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं सर। सुसाइड तक की बातें की गई हैं सर, सुसाइड तक की बातें की गई हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा एज वाले बच्चे नहीं है सर, ये इनका एज 20, 25, 26, जो करियर में हमेशा से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेंटली उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ा है, एंड करियर के ऑप्शंस क्या बस इतने से ही है सर कि एक बच्चे को इतने छोटे समय में डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, या सोशल प्रेशर उनके ऊपर क्या है सर? एंड आप दोनों से बेहतर आंसर कहीं समय नहीं मिलेगा सर कि क्या मेंटल प्रेशर वो झेल रहे हैं, क्या सोशल प्रेशर है, क्या बस इतना ही स्कोप है? आप 2 सक्सेसफुल लोग हैं, और अगर ये आपकी बातें उन तक पहुंचेंगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा उनको हेल्प मिलेगा सर। तो 2 सक्सेसफुल लोगों से ये सक्सेसफुल बातें करते हैं सर। यस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर अनिल सर अगेन, कि सब मेंटल क्या प्रेशर पड़ रहा है, सोशल क्या प्रेशर उनके पड़ रहा है, क्यों वो लोग सुसाइड तक भी सोच ले रहे हैं सर? और ये आने वाले हमारे फ्यूचर है सर। तो आई वांट डेफिनेटली अ वेरी गुड आंसर सर एंड सपोर्ट सर। यस सर। सर्वेश, डेफिनेटली मैं हर बार यही बात करता हूं कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सैड सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेज। लेकिन ये जो कोरोना पेंडेमिक आया, इसकी वजह से ये सैड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेस भी और बढ़ी। ऐसे में कुछ लोगों का माइंडसेट इतना नेगेटिव या होपलेस हो गया कि उन्होंने सुसाइड तक के बारे में सोच लिया, या डिप्रेशन में ज्यादा चले गए। हमारे ब्रेन के अंदर एक अमिगडाला सिस्टम होता है, लिम्बिक ब्रेन, उसके अंदर एक अमिगडाला होता है, और वो आउटर वर्ल्ड में जो भी इवेंट चल रहे हैं उसको परसीव करके इमीडिएट हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है। और
ये एमिग्डाला सेंस कर लिया है फियर, कोरोना का फियर। कोरोना एक इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, जैसा हमने देखा रेफरेंसेस पूरे वर्ल्ड के, कि यूके में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, स्पेन में डेथ हो रही है, इटली में डेथ हो रही है। तो ये इतना बड़ा फियर हम सबने ऐसे परसीव कर लिया कि हमारा एमिग्डाला बहुत ज्यादा फियरफुल हो गया, और हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा आ गए। और हमारी लाइफ जो है वो इमोशनल की वजह से चलती है। इमोशनल ब्रेन, दो ब्रेन होते हैं, एक इमोशनल ब्रेन, एक लॉजिक ब्रेन। हम सोचते हैं कि हम थिंकिंग ब्रेन की वजह से डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लाइफ के इमोशनल होते हैं। तो जब हमारे इमोशनल ब्रेन के अंदर जो एमिग्डाला था उसको एक फियर महसूस हुआ, और भविष्य एक अंधकार में दिखाई देना शुरू हुआ कि आगे तो कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने शुरू हुए। लेकिन अब ये सारी बातें कैसे ठीक किया जाए? जब जब नेगेटिव थिंकिंग आए, जब जब बाहरी पर इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाए, परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, तब तब हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है रीफ्रेमिंग का, कि बाहर की दुनिया की जो इवेंट्स हमें दिखाई दे रही हैं उसके सामने एक नया फ्रेम लगाना होगा। जैसे एक डायरेक्टर मूवी को देखता है, एक फ्रेम से कुछ और दिखाई देता है, दूसरे फ्रेम से कुछ और दिखाई देता है। सेम टू सेम हमें भी अपने परसेप्शन को बदलना होगा कोरोना को लेकर, ताकि हमारा जो ये एमिग्डाला फियर महसूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन हो जाए, एक्सेप्ट हो जा कर ले इस चीजों को। तो बहुत सारी चीजों को हमें समझकर एक नया मीनिंग कोरोना का अपने लिए निकालना होगा। क्या निकालना है? कि कोरोना हमसे कुछ करवाने के लिए आया है, कोरोना हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, कोरोना हमारे अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए आया है। और इस दौरान मैं क्या से इस समय को व्यतीत कर सकता हूं। एक होता है कि मैं स्पेंड करूं, और एक इसको मैं यूटिलाइज करूं। जैसा डॉक्टर अजय शेष ने कहा, यह समय है इंटरनल ग्रोथ का। तो इंटरनली ग्रोथ करें, अपनी एक्सपेक्टेशन, लाइफ के जो गोल्स हमने बनाए हुए हैं उनसे दूर नहीं भागना है। कोई चेंज नहीं हुआ है, बस वो गोल थोड़े से पोस्टपोन करने होंगे, कि आपने उस गोल का, जो इस वर्ष का जो गोल बना के रखा था, उसे आप एक साल आगे ले जाएंगे। कि हाँ ठीक है, इस समय मैं उस गोल के पास नहीं पहुंचा, कैसे? एक्सटर्नली। लेकिन इंटरनली जो मैंने प्रिपरेशन करी, जो मैंने अपने ऊपर काम किया, जो मैंने नई ट्रेनिंग्स ली, जो मैंने नई बुक्स ली, और सबसे बड़ी बात, इस इमरजेंसी को हैंडल करना सीखा, यह बहुत बड़ी चीज है। मैं युवा वर्ग से कहना चाहूंगा, स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जो किसी प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें यह सीखना होगा, समझना होगा कि उन्होंने लाइफ का एक लेसन था, जैसे बुक्स में लेसन हम लर्न करते हैं, उन्होंने रियल लाइफ का एक लेसन सीखा, और इस लेसन में उन्होंने इमरजेंसी मैनेजमेंट सीखा, जो सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम देर सवेर हो ही जाएगा, जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उन्हें देर सवेर मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है कि एक साल बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये जो लेसन वो सीख रहे हैं ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा, क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो जाएंगे उस प्रोफेशन में भी ये सारी चीजें होंगी। तो हमारे एमिग्डाला को हमें शांत करके रखना है, एक्सेप्टेंस लेकर आना है, रीफ्रेमिंग करना है, पूरी घटना को नए एंगल से देखना है, सीखने के एंगल से। जैसे मैं इस घटना को देख रहा हूं, ये मेरे लिए लर्निंग टाइम है। यस सर। तो लर्निंग समय समझकर अपने ड्रीम गोल से पीछे नहीं भागना, उन्हें बार बार सोचना है, और इस इमरजेंसी से कुछ कुछ जो लर्निंग मिल रही है उन्हें लिखें, और लिखकर ये रियल लाइफ का एग्जाम है, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आप खुद को नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देके जाओगे, अपने बच्चों को भी सुनाओगे। तो एंजॉय करें इस समय को, लर्निंग समय बनाएं, और रिलैक्स रहें, कूल रहें। यही मेरा मैसेज है युवा वर्ग के लिए। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं अजय श्रेष्ठ से भी यही पूछना चाहूंगा कि क्या, कैसे हमारे सोशल प्रेशर हमारे यूथ के दिमाग पे आया है, एंड क्या बस इतना ही स्कोप है? बहुत सुंदर आंसर हमें अनिल सर से मिला, टेक्निकल भी था आंसर बहुत। नेक्स्ट अजय सर से मैं सेम क्वेश्चन करना, इतना अच्छा आंसर दिया कि मैं उनको सुनने में ही मगन हो गया था, और ये भूल गया था कि मुझे भी कुछ आंसर देना है इसके बारे में। बट इट्स अ ब्रिलियंट आंसर, और मेरा काम बहुत आसान कर दिया, इसीलिए मैं इसको कुछ अलग ढंग से आंसर करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो जो डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कवर कर लिया। देखिए, बात सिर्फ कोरोना की नहीं है। मैं सर्वेश तुम्ही से कुछ पूछता हूँ, मतलब मैं पूरे ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, बट तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो मेरे को ऑडियंस के रूप में अभी। मुझे एक बात बताओ, क्या कोरोना ही एकमात्र क्राइसिस है इस दुनिया में जो आया है? यस और नो? इसके पहले भी दूसरे क्राइसिस आए हैं। आर्थिक रूप से डिप्रेशन आया था, फिर उसके बाद में जो है
जो अमेरिका पे जो अटैक हुए थे और उसके पहले जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, ये हुई थी, ठीक है, कोरोना बहुत व्यापक रहा, पर इसके पहले भी दुनिया पे संकट आया है, यस ठीक है। सर, क्या यस दुनिया सर, उससे उबर पाई है? यस, यस, दुनिया चेंज हुई, उभरी, पर चेंज हुई। दुनिया चेंज हुई पर उभरी, कहीं पर पहले चेंज होकर के उभरी, कहीं पर उबर करके चेंज हुई। बट वी यस हैव सर, ऑलवेज, द ह्यूमन काइंड, द वर्ल्ड यस सर, हैव ऑलवेज रिएक्टेड पॉजिटिवली टू यस एनी सर, चेंज, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी कैपेसिटी चेंज को रिएक्ट करने की कैसी है, ठीक है। यस सर, चेंज किस में आता है? चेंज हमारे कंफर्ट जोन में आता है। किसी किसी के लिए एक सिंपल ट्रांसफर भी हो जाए ना इस शहर से उस शहर, तो उसके लिए जिंदगी की बहुत बड़ी घटना होती है। यस और सर, किसी के लिए ये एक चेंज की भाई ठीक है, जॉब में हूँ, ट्रांसफर तो होगा, चलो एक नया शहर देखते हैं, एक नया, इसमें शायद वहां पर मुझे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। हाउ यू रिएक्ट टू चेंज, चेंज इज नॉट द इशू, हाउ यू रिएक्ट टू चेंज इज द इशू। यस सर, किसी के लिए किसी के लिए एक इंजुरी हो जाना बहुत बड़ी घटना हो सकती है और वो डिप्रेस हो जाएगा। दूसरे के लिए लगेगा कि चलो भाई 10 दिन अभी घर में बैठने को मिला है, 2 किताबें पढ़ने का चांस, ये ऊपर वाले का सिग्नल है कि भाई 10 दिन बैठ करके किताब पढ़, जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता बोल रहे थे, इट इज सम सिग्नल, ठीक है। सेकेंडली, एक तो कंफर्ट जोन में चेंज को हम कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई इस साल मेरा जून तक ये हो जाएगा, फिर अक्टूबर तक ये हो जाएगा, और अगले साल मेरा, हम एक एक्सपेक्टेशन बना के बैठते हैं, हम अपना एक कैलेंडर बना करके बैठते हैं। याद रखिए, आपका यस सर, कैलेंडर आपका कैलेंडर जरूरी नहीं कि ऊपर वाले के कैलेंडर से पैरेलल हो, ठीक है। तो ये यस जो सर, एक्सपेक्टेशन होता है ना कि इस समय तक ये हो ही जाएगा, इस समय तक ये हो ही जाएगा, यस ठीक सर, है। तो ये एक्सपेक्टेशन में चेंज को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, द इशू इज नॉट द स्टिमुलस, द इशू इज हाउ वी रिएक्ट टू द स्टिमुलस, करेक्ट एग्जैक्टली है। सर, यस सर, सो ये रिएक्शन टू चेंज, ये हमारे अंदर में अगर कुछ लोगों को नेचुरली आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो नेचर का ये तरीका होता है, वैसी घटनाएं आपकी लाइफ में होती है। मुझे एक बात बताइए सर्वेश, यस क्या सर, आपकी लाइफ में इसके पहले कभी कोई मुसीबत या कोई मुश्किलों से आप गुजरे हैं? क्या कभी कोई स्ट्रगल आया है आपकी लाइफ में? इससे बड़ी बड़ी आई है सर, इससे बड़ी बड़ी आई है। अभी अगर यस सर, आप इस स्ट्रगल से चल रहे हैं, ठीक है, क्या ये फर्स्ट टाइम है आपकी लाइफ में कि ये प्रॉब्लम आ रहा है? ये मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सर्वेश आंसर दे रहे हैं आप सबकी तरफ से। क्या ये यस सर, पहली बार है कि आपकी जिंदगी में मुश्किल आई? यस नहीं और नो? सर, नहीं सर, क्या ये आखिरी बार है कि आपकी लाइफ में मुश्किल आई है? यस और नो? नहीं सर, आगे भी आती रहेंगी। न ये पहली बार है, न ये यस आखिरी सर, बार है। तो भाई यस किस सर, बात का डरना और क्यों डरना? यस सर, कि ऐसा एटीट्यूड हमको बनाना पड़ेगा। यस देखिए, सर, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये कतई नहीं होता कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो, पॉजिटिव सर, थिंकिंग मींस अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, तो भगवान मुझे वो शक्ति, युक्ति और बुद्धि दो कि उसको मैं फेस कर सकूं। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब यस सर, एस्केपिज्म नहीं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग यस सर, डज नॉट मीन कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैं सफर पे निकल रहा हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। नो, दैट इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। मैं सफर पे निकला हूँ, कुछ गड़बड़ हो सकती है, एम आई प्रिपेयर्ड? और अगर कुछ गड़बड़ आई तो भगवान मुझे वो शक्ति, युक्ति और बुद्धि दे, नेचर मुझे वो शक्ति, युक्ति और बुद्धि दे कि उसको मैं फेस कर सकूं। दैट इज यस द सर, राइट थिंग, ठीक है। इसके पहले भी यस प्रॉब्लम्स सर, आए, तुमने फेस किए कि नहीं किए? यस सर, किए ना, तो ये भी यस वैसे ही सर, होगा। तुम्हारे अकेले पे ये प्रॉब्लम आया है क्या? एंड नहीं लेट सब मी पे टेल आया यू, सर, मैं यस सर, सबसे पूछ रहा हूँ, यस सर, तुम्हारे माध्यम से सबसे पूछ रहा हूँ, यस सर, क्या तुम फेस कर सके उसको? यस सर, डिड यू बिकम स्ट्रॉन्गर? वेरी स्ट्रॉन्ग, यस सर, यस, आई लेट मी लर्न टेल फ्रॉम यू दोस वन थिंग। थिंग्स, यस सर, एक चीज और, इसके बाद तुम अगला सवाल पूछ सकते हो। यस सर, एक चीज, एक जो मैंने किताब में मैंने पढ़ी थी, किसने Yes. कहा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और वो सेंटेंस ये था, वॉट एवर डजेंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यस सर, कोई चीज जो अगर आपको मार ही डाले तो अलग बात है, खेल ही खत्म वहां पर। यस सर, वॉट एवर डजेंट किल यू यस सर, makes you stronger. If Yes, not sir. physically, then Mentally. mentally stronger. यस सर, So all of us are becoming stronger. This world is becoming stronger. जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा हमको रीसेट करना पड़ेगा। मेरे काफी sir. सारे गोल्स जो है, मुझे पता है अब इस साल में अटेन नहीं कर पाऊंगा, अगले साल कर लेंगे यार, अगले साल sir. डबल कर लेंगे यार। यस सर, What it? So how you react to change यस is सर, important. And if you are not ready to react to change,
यस सर, नेचर हैज इट्स ओन वे, यस सर, नेचर का अपना तरीका होता है। ये Yes, सब sir. सिखाते हैं। यस सर, सो अगेन मेरी बातें जो हैं मेरी और डॉक्टर अनिल गुप्ता की बातों में काफी पैरेलल आपको दिखेगा। यस वो सर, अपने ढंग से बात कर रहे, मैं अपने ढंग से बात कह रहा हूँ, बट Exactly, यस हम लोग के जो है इतना माइंडसेट मिलता है इसीलिए क्योंकि हम लोग एक जैसा सोचते हैं और ये Yes, सब sir. है। एंड आई एम वेरी Yes. हैप्पी दैट यू आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस सर्वेश। थैंक यू सर। एंड मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही है सर कि हम सबको वो नदी बनना चाहिए जो कोई भी पत्थर तोड़ के अपना रास्ता बना लेते हैं। पत्थर सामने आते रहेंगे और हमें उसको तोड़ के अपना रास्ता बनाते रहना है। शायद इसी तरह हमारी जिंदगी चलेगी। एक फिलॉसफी मेरी छोटी सी है सर कि लाइफ इज जस्ट अ फ्लो ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड वी आर फ्लोइंग इन दैट फ्लो। यस सर, Yeah. यस सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कि प्रॉब्लम्स हमने देखे, सॉल्यूशंस भी हमें कुछ कुछ मिले, लेकिन अब मैं क्लियर सॉल्यूशन की बात करना चाहूंगा सर कि ओके अभी तक मोटिवेशनल टर्म में भी टेक्निकल टर्म में भी हमें तो उसको एक कंक्लूजन देने की बात है सर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि मेंटली स्टेबल कैसे रहे। थोड़े ट्रिक्स, थोड़े आप गाइडेंस प्रोवाइड कराएं हमारे दर्शकों को कि मेंटली स्टेबल कैसे रहा जाए अभी भी, बाद में भी, और चाहे अब कोई भी सिचुएशन आए लाइफ के उसमें। सो अगेन मेंटली स्टेबल रहने के लिए आई स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर अनिल सर अगेन। यस सर। यस सर्वेश, थोड़ा Yes, sir. प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। यस सर, मैं क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट हूं, मैं हेल्थ की बात करूंगा। बिजनेस Yes, के लिए sir. डॉक्टर अजय शेष हैं। यस सर, कैसे किया जाए? सबसे पहले समझिए कि जो भी फेवरेबल समय हो या अनफेवरेबल समय हो, यस सर, जब तक आप हेल्दी और हैप्पी नहीं रहेंगे तब तक आप अपने गोल्स को या किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो क्या करना है? शुरुआत होती है लाइफस्टाइल से। आपको अपना लाइफस्टाइल परफेक्ट रखना है ताकि आपकी हेल्थ परफेक्ट रहे। लाइफस्टाइल में कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहला है स्लीप। 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए चार्जिंग सिस्टम का काम करता है, आपकी बॉडी की बैटरी को चार्ज करता है। अगर बैटरी sir. फुली चार्ज रहेगी तभी तो आप कोई वर्क कर पाएंगे बिजनेस में या प्रोफेशन में। दूसरा पार्ट है डाइट। डाइट Yes, डाइट sir. आपकी एक्सटर्नल एनर्जी है। Yes, sir. अगर आप एनर्जेटिक फूड नहीं लेंगे, अनहेल्दी फूड लेंगे, तो बॉडी का जो एनर्जी है वो डाउन होगा। तो Yes, इस sir. समय एनर्जेटिक फूड लेना बहुत जरूरी है। एनर्जेटिक फूड मतलब जो नेचर के फूड्स हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स। 50 to 60% रॉ मटेरियल्स, रॉ वेजिटेबल्स अपने डाइट में शामिल करें। कोरोना हमें यही सब तो सिखा रहा है कि हम क्या अपना लाइफस्टाइल बदलें। जो जो चीजें कोरोना ने सिखाई वो कहीं ना कहीं हमें खुद से सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं सीखा, इसीलिए कोरोना Yes, sir. आया है। क्या डाइट में बदलाव करना है, क्या दिनचर्या में बदलाव। अगला पार्ट है अपने आप को थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएं। उठने का समय, खाने का समय और सोने का समय, ये एटलीस्ट 3 चीजें बहुत डिफाइन कर ले, रिफाइन कर लें। सुबह Yes, sir. 5 से 7 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। Yes, sir. 7 से 9 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच Yes, का जो sir. समय होता है वो 1 बजे से 3 बजे के बीच में होता है। 1 से 2 बेस्ट होता है समय। Yes, और sir. डिनर टाइम 7 से 9 के बीच में। सोने का समय 10 बजे तक हो जाना चाहिए। 10 से 11, अगर आपको मैक्सिमम थोड़ा सा आगे करना है तो 10 से 11, बस उससे ज्यादा नहीं। और 11 से 5 एक साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए। डाइट, फ्रेश वेजिटेबल्स और फूड, फ्रूट्स, ये अपनी डाइट में एटलीस्ट 50% ऐड ऑन करें। इसके अलावा ये तो हुआ फिजिकल हेल्थ में। फिजिकल हेल्थ में वर्कआउट, 30 मिनट का वर्कआउट बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का वर्कआउट, योगा करें, आसन करें, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, साइकिलिंग करें, गेम खेलें, जिम जाएं, जो आप कर सकते हो इस क्राइसिस के समय में, जो भी आप कर सकते हो जिससे आपको एटलीस्ट स्वेटिंग होना चाहिए। 30 मिनट बॉडी को आपको मूवमेंट मोड में लाना है क्योंकि हमारा बॉडी इनएक्टिव हो गया है, खासकर ये लॉकडाउन में, और माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है, ओवर एक्टिव हो गया है, थॉट्स ज्यादा आ रही हैं। अब माइंड को हमें अंडर एक्टिव करना है, तो आधे घंटे का मेडिटेशन और आधे घंटे का फिजिकल वर्कआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हेल्थ को समझने के लिए। डाइट और स्लीप, अगर आप ये 4 चीजों पे ध्यान देते हैं, मुझे लगता है आपकी हेल्थ मस्त, बहुत ही अच्छी रहेगी, मस्त रहेगी। कोरोना क्या, कोरोना का कोई भी भाई बंधु, मम्मी पापा कोई भी आ जाए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि वायरस तो हमारे आसपास हैं ही। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया से लेकर
इबोला वायरस से लेकर स्वाइन फ्लू से लेकर वो तो इन्वायरमेंट में है ही, और बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनका भी डायग्नोसिस नहीं बना है। वो तो कोरोना को हमने टेस्ट कर लिया है, कोरोना के बहुत सारे भाई बंधु हमारे इन्वायरमेंट में हैं। वो हमें तभी अफेक्ट करेंगे जब हमारा इंटरनल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा। एक्सटर्नल कंडीशन पे हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम अगर हेल्दी रहेगा तो कोई भी डिजीज आपको नहीं आएगी। क्या केवल कोरोना से बचना है? और भी तो बहुत सारी डिजीज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना से हम बच रहे हैं और हम डायबिटिक, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखना और मस्त रखना, हेल्दी हैप्पी यू, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये रखते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर, मैं कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस हैं अगर हम इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं, डाइट से लेके जो हमारा शेड्यूल है, टाइमिंग है, फॉलो नहीं करते हैं, तो कौन कौन से सीरियस डिजीजेस होने के एक शॉर्ट आंसर चाहिए सर इस पे चांसेस हैं? 2 प्रकार की डिजीज बहुत ज्यादा संभावना है कोरोना के समय होने की। कोरोना से तो बचना ही है, लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये बहुत कॉमन है। तीसरा साइकोसोमेटिक, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैड सिंड्रोम, सुसाइडल टेंडेंसी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ये अभी कोरोना के समय इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इन दोनों को ध्यान देने के लिए जो मैंने 4 चीजें पहले बताई, अगर आप ये करेंगे तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो कोरोना की वजह से आ सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से आ सकते हैं, इनसे आप बच सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। एंड मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आपने ये सारी बातें प्लीज आप नोट कर लें एंड ऐसा ही अपना शेड्यूल फॉर्म करें आगे का। सेम हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि मेंटल स्टेबिलिटी। सो एज अ मेडिकल डॉक्टर सर ने बहुत सारी चीजें हमें बताए हैं। अब मैं डॉक्टर अजय शेष सर से पूछना चाहूंगा कि सर मेंटल स्टेबिलिटी करियर ग्रोथ के लिए हमारी कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें उसे मेंटेन रखना चाहिए, किस तरीके से उस मेंटल स्टेबिलिटी पे हमें फोकस्ड रहना चाहिए। सो प्लीज डॉक्टर अजय शेष सर। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं करियर की बात करूं या बिजनेस की बात करूं रिलेटेड टू मेंटल स्टेबिलिटी, डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि भाई हमारी सोच और हमारा मेडिटेशन का बताया, सोने उठने का उसका ये बताया। मेरा जो है, मैं अगर मैं एक एक्शन ओरिएंटेड की बात करूं, जैसा आपने कहा कि भाई प्रैक्टिकल टिप्स, तो जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं, तो मैं भी कुछ अब प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि ये अगर आप करते हैं तो आपको मेंटली आप जो है वो मतलब डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि अब जीवनचर्या किस प्रकार से मेंटेन करें कि मेंटल स्टेबिलिटी रहे। मैं अब आपको बता रहा हूं कि कौन सी एक्टिविटीज करें कि जिससे डॉक्टर अनिल गुप्ता जो बता रहे वो करने में और ज्यादा आसानी होगी। इज इट ओके? बता सकता हूं? यस सर, यस सर। ओके, सबसे पहले When it comes to mental stability, मेंटल स्टेबिलिटी क्यों खराब होती है? मेंटल स्टेबिलिटी 2 वजहों से खराब होती है, एक तो हेल्थ और दूसरा फाइनेंशियल सिचुएशन। करेक्ट है? फाइनेंशियल सिचुएशन यानी रिलेटेड टू जॉब और रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, ये कोरोना टाइम्स में हमको अब ये समझ में आ गया है कि हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे पैसे वाले सबकी औकात अभी पता चल गई है। औकात शब्द मैं किसी डेरोगेटरी तरीके से नहीं बोल रहा हूं। हमको ये पता चल गया कि कौन कितना फाइनेंशियली हेल्दी था, किसकी फाइनेंशियल हैबिट्स कितनी थी। इशू ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, इशू ये है कि आपके पास उतना कमाने के बाद बचता कितना है फॉर अ टफ डे। करेक्ट है? वो सब लोग जो शायद बहुत कमाते थे पर पूरा खर्च कर देते थे और हमको लगता था कि वाह क्या फाइनेंशियल स्थिति है उनकी, वो सब जो है एकदम नीचे की तरफ डाउन ट्रॉडन कंप्लीटली हो गया। और वो लोग जिनकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी थी, जिनके पास सेविंग थी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो शायद इतनी फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे थे, जितनी दिखावे वाली लाइफस्टाइल नहीं जी रहे थे, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी थी, जिन्होंने सेविंग किया था, इन्वेस्ट किया था, ये सब किया था। अल्टीमेटली आप कितना कमाते हैं वो एकदम अलग बात है, कितना फाइनली आपके पास बचता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? सो वो फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दें, एक बजट बनाएं और बजट के हिसाब से एक फाइनेंशियल सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान बना दें, आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। फिर आप टाइम पे सो सकते हैं, जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता बोल रहे हैं। यस सर। करेक्ट है? ये पहली चीज। तो अभी अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, सबक मिल गया आप लोगों को। ठीक है? कि क्या क्या कहां पे क्या फाइनेंशियल, अगेन ये इंटरनल ग्रोथ की बात है।
मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि अब अगर रियलाइज हो रहा है तो चेंज हो जाओ, हैबिट्स अपनी, फाइनेंशियल हैबिट्स अपनी ठीक कर लो। कम से कम 10% ऑफ वॉट एवर यू अर्न शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड फॉर द रेनी डे। एग्जैक्टली सर। ठीक है। नंबर टू, अगर आप बिजनेस में हैं, तो यू मस्ट स्टार्ट गोइंग ऑनलाइन। जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता भी अपने मेडिकल फील्ड में भी ऑनलाइन गए और अपने ट्रेनिंग फील्ड में भी ऑनलाइन गए। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अभी वी आर ऑल ऑनलाइन, हम सब ऑनलाइन है और सबको ये ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है। तो डेवलप ऑनलाइन सिस्टम्स। रिमेंबर फ्यूचर इज वीडियो, फ्यूचर इज इंटरनेट। यस सर। ये अगर आप सीखना शुरू कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। रिमेंबर, थिंकिंग मोड से एक्शन मोड में आना पड़ेगा। जितना मैं सोचता रहूंगा उतना मेरा स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। पर अगर मैं एक प्लान बनाता हूं और पहला स्टेप भी लेता हूं ना, तो मेरा टेंशन काफी हद तक कम हो जाता है, बिकॉज नाउ आई एम ऑन द सॉल्यूशन साइड। यस सर। इनर इंजीनियरिंग पढ़ी है डॉक्टर अनिल गुप्ता ने, वो भी हमेशा बोलते हैं बी ऑन द सॉल्यूशन साइड। सो बी ऑन द सॉल्यूशन साइड यानी क्या, अभी तक नहीं किया तो शुरू कर दो। व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, आप सॉल्यूशन साइड में रहते हो और आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। सो ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम सीखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कोरोना हो चाहे ना हो, आप बिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। ये मैं सब उन लोगों को बोल रहा हूं जो भले जॉब में है या भले वो बिजनेस में है। अगर आप अभी ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं सीखते हैं, कोरोना हो चाहे ना हो, आप बिछड़ जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। और अगर सीखना शुरू कर देते हैं तो नाउ यू आर ऑन द सॉल्यूशन साइड। अब आपको बहाने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोरोना को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे ऊपर है कि ये कोरोना टाइम को हम ब्लेसिंग में कन्वर्ट करें या इसको जो है हम त्रासदी में कन्वर्ट करें। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन योर बिजनेस। अभी तक धंधा चल रहा था तो चल रहा था, अब हमको समझ में आया कि मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जियो मार्ट आ चुका है, वो छोटे व्यापारियों के लिए ही बना हुआ है। हर छोटा व्यापारी अब एक छोटा अमेज़न बन सकता है। इसके पहले कि उसमें कंपटीशन बढ़ जाए, ये जो ऑनलाइन सिस्टम जो है, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस जो है वो समझ ले और ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो शुरू कर दे। सेकेंडली, धंधे के बारे में फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। अगर आप प्योरली सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जैसे मेडिकल सर्विस इंडस्ट्री है, वकीली का फील्ड सर्विस इंडस्ट्री है, हेल्थ का जनरली सर्विस इंडस्ट्री, तो अगर आप सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें अपने मेन्यू में। अगर आप प्योरली प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो सर्विसेज या कंसल्टेंसी कुछ इंक्लूड करें अपने इसमें, ताकि आपका मेन्यू बड़ा बने एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यूअर एंड न्यूअर पैकेजेस। यस सर। अ पैकेज ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। नए तरीके से अपने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दें। ठीक है। तो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का आप मेन्यू बनाएं, पैकेजेस बनाएं। थर्डली, आप ये ऑब्जर्व करें, देखें कि इस कोरोना काल में भी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो थ्राइव की हैं। यस सर। कोरोना काल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका बिजनेस चलता रहा। आप मुझे बता सकते कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा? डेली नीड्स की इंडस्ट्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। किराना दुकान वगैरह वगैरह। मेडिकल फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा। एजुकेशन फील्ड, जो लोग ऑनलाइन आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्विकली पीपल रिसोर्टेड टू ऑनलाइन मीन्स। तो आने वाले समय में आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में एक ऐसी एवरग्रीन इंडस्ट्री भी होनी चाहिए जो कि ऐसे समय में अफेक्ट नहीं होती है, जो एवरग्रीन फील्ड्स हैं। ठीक है। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए आखिरी बात कह रहा हूं, इस सवाल का आखिरी जवाब, कि जो लोग जॉब में हैं उनको भी एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, उनको अपने स्किल्स पे फिर से काम करना पड़ेगा। उनकी इंटरनेट और उनकी कंप्यूटर स्किल्स अगर कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। वर्क एट होम वो कर सकें, ये वर्क एट होम यानी सिंपल सीधी एक ही बात है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से आपको काम करना आना चाहिए। दूसरा, हाउ कैन आई बिकम एन एसेट टू दिस कंपनी? यस सर। हाउ कैन आई बिकम एन एसेट टू दिस कंपनी? हाउ कैन आई बिकम एन एसेट टू माय ओनर ऑफ दिस कंपनी? उसके लिए मैं कैसे एसेट बन सकता हूं मेरे काम के अलावा? और आपका जॉब कभी नहीं जाएगा। जॉब उन लोगों का जाता है जो एसेट नहीं है उस कंपनी के लिए, लायबिलिटी है। अच्छे जो लायबिलिटी बन चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, पिछड़ चुके हैं और फिर सैलरी लेने की आदत जिनको
हो चुकी Yes, sir. है। Yes, sir. जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक एसेट बनेगा अपने जॉब से बढ़ करके, मेरी कंपनी ये सोच करके जो काम करेगा उसका जॉब कभी नहीं जाएगा। एक कंपनी में भी गया तो दूसरी कंपनी उसको लेने के लिए तैयार रहेगी। सो दिस Yes, इज sir. व्हाट आई फील। ये सब की तरफ अगर मैं बढ़ना शुरू कर देता हूं तो मैं सॉल्यूशन साइड में रहता हूं, मुझे पीस ऑफ माइंड रहता है। फिर जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता बता रहे हैं, मैं मेडिटेट कर सकूंगा, मैं पीसफुली सो सकूंगा, टाइम पे उठ सकूंगा, ये सब। ब्यूटीफुल आंसर सर, पॉइंट्स टू बी नोटेड। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस टिप्स हमें मिले हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे मैं बिजनेस से रिलेटेड हो, ऑनलाइन लाने से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप सभी इसको नोट करें। एंड इसके आगे अब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि सर कि दोनों तरफ से बहुत सारे ऐसी बातें आ रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और इनको कहाँ मिलेगा। आई मीन्स क्लियर करता हूँ इस बात को कि कहीं और क्यों ढूंढने जाए। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले अनिल सर से कि सर मेंटल पावर बढ़ाने के लिए, डिजीजेस को क्योर करने के लिए, एक मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपने जो भी बातें बताई, क्या आपने उसके लिए प्रोग्राम्स के तहत, कोर्सेज के तहत कोई इनिशिएटिव लिया है? सेम इसके बाद आपसे भी ये क्वेश्चन रहेगा सर कि आपने भी इन जैसे आपने बोला कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड आप कहीं ना कहीं ढूंढो और गाइडेंस लो, तो ऐसी चीजों को सबसे पहले मैं अनिल सर से पूछना चाहूंगा कि सर आपने जो अपने ऑनलाइन सेशंस लिए, क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां से लोगों को मेंटली स्ट्रेंथ मिलेगा, उनको लाइफ में ताकत मिलेगी, उनके हेल्थ ठीक होगा? अनिल सर से शुरुआत करते हैं। यस सर। यस सर्वेश, देखो जैसे मैंने इस कोरोना क्राइसिस को अपने लिए जिया, मैंने सोचा कि जो चीजें मैं कर रहा हूं, जैसे मैं फेस कर रहा हूं इस कोरोना क्राइसिस को, अपनी हेल्थ को जैसे अच्छा कर पा रहा हूं, मेरे को यह समझ में आया कि जब तक मैं हेल्दी नहीं रहूंगा, मैं स्टेबल नहीं रहूंगा, मेरा बिजनेस भी डाउन जाएगा। तो पहले मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया और उन्हीं चीजों को मैंने ऑनलाइन भी लाना शुरू किया। डेफिनेटली एज ए होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट मैं ऑलरेडी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल वेलनेस के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारे कोर्सेज पहले से मेरे चलते थे जो कि ऑफलाइन थे, यानी कि 1-to-1 होते थे। लेकिन कोरोना के दौरान मैंने इन कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया। हमने मार्च से ही शुरुआत कर दी थी लोगों को एम्पावर करने की, मेंटली स्टेबल बनाने की। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस क्राइसिस में ऑनलाइन जुड़े। मैंने हर हफ्ते कुछ फ्री क्लासेस भी की और कुछ पेड कोर्सेज भी लाए। और जिन लोगों ने इस समय को इन ऑनलाइन कोर्सेज को यूज करते हुए अपने आप को अपग्रेड किया, अपग्रेड तो किया ही किया, साथ में उन्होंने अपने आप को मेंटली स्टेबल रखा। और मेंटली स्टेबल रहने के साथ उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, अपनी हेल्थ को बढ़ाया। और आज बहुत सारे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, वो पार्टिसिपेंट में से, कि सर अब जब लॉकडाउन ओपन हो गया है तो उनका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। यानी कि बिजनेस, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। और आप अपने माइंड को अगर मैग्नेट बना लेते हो तो मनी भी आएगा, हेल्थ भी आएगा। यस सर। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक एनर्जी मैनेजमेंट और एक माइंड मैनेजमेंट। तो इन दोनों पे ही मैंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए इस कोरोना क्राइसिस के दौरान। पहला है रीराइट योर लाइफ स्टोरी, जो कि सेल्फ मैनेजमेंट का, सेल्फ एनालिसिस का, सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत ही पावरफुल कोर्स है। मेरा ऐसा मानना है, यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी एंड यू कैन रीराइट व्हेन एवर नीडेड। अभी कोरोना का जो चैप्टर इस लाइफ स्टोरी में आ गया है, सबके लिए दर्दनाक है, लेकिन अभी हमें रीराइट करनी होगी अपनी लाइफ स्टोरी। एग्जैक्टली सर। सर ये चीजें मैंने भी अटेंड की है सर, एंड इससे मुझे भी पर्सनली बहुत फायदा हुआ है सर। आपके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एनएलपी प्रोग्राम सर, एंड एनएलपी प्रोग्राम, इट वाज अ वेरी ऑसम प्रोग्राम सर। क्योंकि एनएलपी माइंड को, मैनेजमेंट को सिखाता है। मनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहां से होते हैं? माइंड मैनेजमेंट से। जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक कैसे होगा? और माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले आपको माइंड को समझना होगा। एनएलपी माइंड को समझने की ब्यूटीफुल साइंस है। यस सर। दूसरा, जब आप समझ जाते हैं अपने माइंड को, फिर दूसरे के माइंड को समझना होगा, क्योंकि सब स्ट्रेस में जी रहे हैं, सब किचकिच में जी रहे हैं, सबका माइंड अनस्टेबल है। तो आपको उनके माइंड को भी, अनस्टेबल माइंड को भी हैंडल करना है, चाहे वो अपने रिलेटिव हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो। तो ये एनएलपी का कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन मैंने इसे पूरा डिजाइन कर दिया है, अभी ये ऑनलाइन की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है एनर्जी, कि कैसे मेडिटेशन किया जाए, कैसे वाइब्रेंट रहा जाए, एनर्जेटिक रहा जाए, कैसे नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से भगा दिया जाए,
कैसे आपके आसपास केवल पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट हों, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बन जाए कि आप एक मैग्नेट बन जाएं और जो आप पॉजिटिव सोचें वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। ये है Yes, sir. एनलाइटन योर इनर लाइट। आपके अंदर 7 लाइट होती हैं जिन्हें आप भूल चुके हैं। बाहरी चकाचौंध में, दुनिया की चकाचौंध में ये लाइट डिम हो गई हैं और कोरोना ने इन्हें और डिम कर दिया है। कोरोना की लाइट बहुत छोटी सी लाइट है, हमारे अंदर की लाइट बहुत जबरदस्त है। अगर हम इन्हें इल्यूमिनेट कर लें तो शानदार ऑरा के साथ, शानदार एनर्जी के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यह है एनलाइटन योर इनर लाइट। साइको न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग, चक्र प्रोग्रामिंग, मेडिटेशन प्रोग्रामिंग, योर इनर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग, हेल्थ एनर्जी और माइंड मैनेजमेंट, दोनों पे ही मेरा एक्सपर्टीज है और यही मैं इस दौरान लेकर आया हूं। लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे इस ग्रुप में, अगर आप चाहें तो उस पर जाकर एक बार स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। एंड यस, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मुझे बहुत सारे पर्सनल हेल्प मिली सर, माइंड से रिलेटेड। एंड जो हमारे जिस समय मैं ये कोर्स आपके साथ कर रहा था सर, हमारे सेशन में जो और बाकी लोग थे उनके भी टेस्टिमनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सर। वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है। सो अगेन, एज हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का था तो मैं तुरंत डॉक्टर अजय श्रेष्ठ सर से भी बोलूँगा कि सर आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। लाइक यस्टरडे एक छोटा सा मैसेज आपका मुझे मिला था कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड, तो मैं अजय शेष सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं एंड लोग कहीं और क्यों जाएं। आप ही, जब आपने सजेशन दिया है तो आपसे वो सर्विसेज लें, अगर लोगों को पता होगा तो डेफिनेटली सर वो आपके पास आएंगे। तो आई वांट यू टू हाईलाइट दोस थिंग्स सर। ओ यस, यस सर। मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मेरे होते हैं, जिसमें जो मैं लोगों के समक्ष अपने जो मैंने ई लर्निंग प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं, यस सर। जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स थे सब के सब अब ई लर्निंग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर किसी की लाइफ में कोई अगर है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जिंदा हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई आपकी लाइफ में है तो वो है आपकी हेल्थ। अगर Yes, sir. हेल्थ है तो बाकी सब कुछ है। हेल्थ है तो सपने साकार होंगे, हेल्थ है तो पैसा कमाएंगे, हेल्थ है तो बिजनेस बढ़ाएंगे, हेल्थ है तो ये अचीव करेंगे, हेल्थ है तो गाड़ी है, हेल्थ है तो Yes, sir. बंगला है, हेल्थ है तो हैप्पी फैमिली लाइफ है, हेल्थ है अगर आप यंग है और हेल्थ है तो अच्छा जीवन साथी है, हेल्थ है तो सब कुछ है। Yes, और sir. हेल्थ है फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। तो Yes, सबसे sir. पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, not only as a doctor but as an experienced educated human being और एक व्यक्ति जिसने दुनिया देखी है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप जिंदा हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंड द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट इज दैट आपको हेल्दी रहना है। यस सर। क्योंकि अगर वो एक सबसे बड़ा फाउंडेशन है, ये चक्का है आपकी लाइफ का। अगर चक्के नहीं होंगे तो कोई भी गाड़ी जो घिसटती जाएगी। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपकी जिंदगी घिसटेगी। बाकी सब कुछ भूल जाइए अगर हेल्थ नहीं है आपकी तो। यस सर। और इसीलिए वहां पे डॉक्टर अनिल गुप्ता काम कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ के ऊपर में भी और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। यस सर। अब हेल्थ वाला एस्पेक्ट जो डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास से आपने कवर कर लिया, तो फिर Yes. आता है बाकी की चीजें जिंदगी की। यस सर। आप मानते हैं इस बात को? यस सर। अब हेल्थ हमने कवर कर ली, अब आते हैं बाकी की चीजों पे। बिजनेस है, पैसा है, बाकी सब चीजें जो है, यस सर। राइट। तो यहाँ पर जो मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मेरे हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अनिल गुप्ता इतनी खूबसूरती से वो अपना एरिया कवर करते हैं कि मैंने जानबूझ करके उस एरिया में नहीं गया, क्योंकि पर्याप्त मटेरियल डॉक्टर अनिल गुप्ता ने Yes, sir. बनाया। मैं क्यों Yes, sir. डुप्लीकेट करूं उसको? यस सर। मैं क्यों डबल उस पे ये करूं? एग्जैक्टली सर। मैं खुद भी डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास जाऊंगा और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किया हूं, करूंगा, अगर मुझे हेल्थ रिलेटेड कुछ अगर सीखना हो तो। श्योर सर। अब अगली बात जो आती है, जब हेल्थ का बेसिस आपने कवर कर लिया, बेस आपने कवर कर लिया, फाउंडेशन, नींव आपने बना ली हेल्थ की, तो नेक्स्ट आता है हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस सर। आपके अंदर में वो क्या स्किल है, अपने Yes, अंदर sir. में क्या नैसर्गिक प्रतिभा है जिसको हम पहचान सकें। जैसे मुझे समझ में आया, मेरे अंदर में नैसर्गिक प्रतिभा है पब्लिक स्पीकिंग की, बोलने की, सिखाने की, एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेटर, एज समवन इंस्पायरर। ठीक है, हाउ एम आई डिफरेंट, ये कैसे पहचाने, हाउ आई एम वर्ल्ड क्लास, ये कैसे पहचाने, मतलब स्किल्स के ऊपर में काम करना। यस सर। थिंकिंग स्किल्स एज वेल एज
योर ओन मैकेनिकल स्किल्स, जो आपका हुनर है, कौशल है। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है भारत सरकार का जब वो स्किल बिल्डिंग का प्रोग्राम जब आया, तो ये स्किल से रिलेटेड थिंकिंग स्किल और जो हमारी जो फिजिकल स्किल्स जो होनी चाहिए उसके ऊपर में मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं। ये फ्री रिसोर्स है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब के ऊपर में मेरे 125 से अधिक वीडियोस हैं, जहां पर आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करना वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए फ्री प्रोग्राम्स। दूसरा, अब जब ये आपके पास में हेल्थ है, आपके पास में अब स्किल है, अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मैं मोनेटाइज कैसे करूं, ये आना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्किल होने से कुछ नहीं होता अगर मेरे पास उसको मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स नहीं है तो। अगर मैं उसको मोनेटाइज नहीं कर सकता, मोनेटाइज एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ उससे रिलेटेड अगर मैं एक अच्छा जॉब ले नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो सो मोनेटाइज करने से रिलेटेड, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, दैट कम अंडर एन इकोसिस्टम। काफी सारे प्रोग्राम्स का एक इकोसिस्टम है जिसका नाम है लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हमारी जो पर्सनल एंड सोशल स्किल्स है दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये जो मोनेटाइज करने के, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जो मेरे ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम। और इसके ऊपर जब आपने ये भी कर लिया तो आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना आना चाहिए, जहां पे आपका बिजनेस आपके प्रेजेंस में भी चले और एब्सेंस में भी उतने ही अच्छे से चले, जिससे आप उस बिजनेस को एक्सपैंड, आप फ्री हो जाएं और आप उस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, तो एक्सपेंशन करने के लिए जो बिजनेस को ऑटोमेट करना जरूरी है। आप देख रहे हैं अभी डॉक्टर अनिल गुप्ता और उनकी टीम ने कितना बेहतरीन ढंग से ऑटोमेट किया है। डे टू डे एक्टिविटी से ये फ्री हुए हैं, इसलिए कोरबा में भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, वहां भी ब्रांच है, जो उनके प्रेजेंस या उनके एब्सेंस में उतनी ही अच्छे से चलती है। तो ये ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। सो ऑटोमेशन के लिए जो एक मेरा प्रोडक्ट है क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर, यानी जिस प्रकार से घड़ी को हम चाबी देते हैं या बैटरी और घड़ी खूबसूरती से चलती है, उस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर किस प्रकार से एनर्जी भरे अपने कंपनी में और वो कंपनी स्वचालित रूप से चलती रही, एक क्लॉकवर्क की तरह चलती रहे, घड़ी की तरह चलती रहे। तो ये क्लॉकवर्क जो है, ये दो मेरे फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे यूट्यूब में, पेड जो है वो दो हैं, लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम और दूसरा ऑटोमेशन के लिए क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके रिलेटेड लिंक्स भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा कमेंट्स में। प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट्स आल्सो सर। यस, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो संपर्क कर सकते हैं। श्योर सर। इतनी सारी पॉजिटिव बातें आज हुई हैं सर, और इन सारे पॉजिटिव बातों के बीच में अगर हम इंट्रो वीडियो में हमने डॉक्टर अनिल सर के वीडियो में एक इनिशिएटिव जो 2017 में सर ने लिया था, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच पे, पॉजिटिव हेल्थ जोन सर, इतनी सारी पॉजिटिव बातों के बीच में अगर हम पॉजिटिव हेल्थ जोन के बारे में बातें ना करें सर, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट ने बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ में हेल्प किया है सर। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनिल सर कि आप पॉजिटिव हेल्थ जोन और इस इनिशिएटिव पे, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर के अप्रोच पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जरूर सर। राइट। यस सर। सर्वेश। यस सर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं, तब तक कोई भी चीज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। यस सर। यानी कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई सोसाइटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज की शुरुआत आपसे होती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, पहला एटीट्यूड ऐसा लेकर आते हैं, फिर उसके बाद आती है कि अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो अब करना क्या है। तो यहां पर हेल्थ और हैप्पीनेस एक साथ लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्दी हैप्पी पर्सन ही लाइफ के सारे डायमेंशन को जी सकता है। यस सर। तो एक कॉमन मैन कैसे हेल्दी और हैप्पी रहे, उस चीज को मैंने समझकर एक सिस्टम की स्थापना की, एक स्टार्टअप की स्थापना की, जिसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ जोन। यानी कि लोगों को कैसे हेल्दी और हैप्पी रखा जाए। yes, तो उसके लिए हमने सोचा कि आज जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन वो केवल एक्यूट डिजीजेस को, इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए अच्छा है। लेकिन जहां बात आती है क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस की, साइकोसोमेटिक डिजीज की, वहां पर
मॉडर्न मेडिकल सिस्टम केवल ट्रीटमेंट करता है, यानी कि डिजीज को सिम्टोमेटिक ट्रीट करता है, ना प्रिवेंशन की बात है और ना क्योर की। तो कोई ऐसी साइंसेस भी होंगी जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ अपना रोल प्ले करें। तो वहां पर हमने बहुत सारी साइंसेस को इंटीग्रेट किया है। यहां पर हमने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ एंशिएंट वैदिक साइंस, जिसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी है, उसको इंटीग्रेट किया है। यस सर। ब्रेन और बॉडी की साइंसेस के साथ हमने इंटीग्रेट किया है अदर साइंसेस, माइंड और सोल की साइंसेस को। हमने इंटीग्रेट किया मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन को, ईस्टर्न साइंसेस के साथ वेस्टर्न साइंसेस को। यानी कि मैं समझता हूं माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल 4 पार्ट होते हैं। माइंड एक सॉफ्टवेयर है, बॉडी और ब्रेन एक अलग पार्ट है। बॉडी और ब्रेन को भी डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, जिसमें हमारी आयुर्वेद साइंस बहुत अच्छी साइंस है। लेकिन माइंड को भी डिटॉक्स करना पड़ता है, रीप्रोग्राम करना पड़ता है। ये हमारा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर बहुत सारी साइंसेस को इंटीग्रेट किया। फिर सोल, हम हैं क्या बेसिकली, सोल और सुप्रीम सोल, स्पिरिचुअल पावर क्या होती है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है लाइफ का, गॉड का मीनिंग क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है। एंशिएंट वैदिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स का एक अनूठा मिश्रण पॉजिटिव हेल्थ जोन, यानी कि 7 डायमेंशनल वेलनेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल। इनफैक्ट डॉक्टर अजय शेष हमारे पॉजिटिव हेल्थ जोन में बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। जहां बात आती है बिजनेस, तो मैं खुद, जब मुझे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं अजय सर से कंसल्ट करता हूं और एज ए मेंटर वो मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। यस सर। और बहुत सारी चीजें कि पॉजिटिव हेल्थ जोन को कैसे आगे बढ़ाना है, एसजीवी को कैसे आगे बढ़ाना है, स्ट्रेटजी मेकिंग, गोल सेटिंग, ये सारी चीजें मैं अजय सर के साथ करता हूं बैठकर, जहां बिजनेस की हेल्थ की बात आती है। लेकिन जहां बात आती है अपनी पर्सनल हेल्थ की, उसके लिए मुझे लगा कि जो चीजें मैं अपने ऊपर अडॉप्ट करता हूं वो सारी चीजें दुनिया के सामने लेकर आनी है और एक नई डायमेंशन पे। मैं एज ए डॉक्टर मैंने मेडिकल साइंस को समझा, पीएचडी एज ए डॉक्टरेट मैंने वैदिक साइंस को समझा, लेकिन दोनों ही साइंस अपनी जगह सही हैं। इन दोनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। कौन सी चीज कहां पर देनी है, कब कहां यूज करना है, कौन सी साइंस को, ये है पॉजिटिव हेल्थ जोन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के लिंक पर जाकर देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं इतना ही कहूंगा, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। और मेलोडी खाने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर चलें, एक छोटा सा टेस्ट आपको वहां से मिल जाएगा। थैंक यू अनिल सर। एंड यस, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली सर एक और चीज जानना चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि हमारा पॉजिटिव हेल्थ जोन लोकेटेड कहां पे है सर। ये लोकेटेड है आम्रपाली सोसाइटी, पचपेड़ी नाका, कलर्स मॉल के अपोजिट पिच बैक साइड में। और हमारा लाइफस्टाइल क्लिनिक जो क्रॉनिक डिजीज का पार्ट है, प्रिवेंटिव पार्ट है, वो गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में, गणेश विनायक आई हॉस्पिटल की बिल्डिंग से संचालित होता है। कोरोना समय में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इनको प्रिवेंट भी तो करना है और इनको रिवर्स करना है। तो पीएच का लाइफस्टाइल क्लिनिक एसजीवी की बिल्डिंग के अंदर में ही है, जो एसजीवी श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका में कलर्स मॉल के अपोजिट साइड में है। यस सर, थैंक यू सर। एंड जैसा स्टार्टिंग मैंने बोला था कि डायनेमिक एटोस, एंड यस, जैसे आप लोग का मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है सर, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, तो मैं थोड़ा भी अगेन संकोच नहीं करूंगा बोलने को, यस यू टू आर डायनेमिक एटोस ऑन A2A टुडे। एंड इतने सारे इंफॉर्मेशन के बाद सर, यस हमने 1 घंटे का टाइम रखा था, थोड़ा लेट से प्रोग्राम, तो समय का भी सम्मान करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा आप दोनों से सर, कि आज का जो हमारा यूथ है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस की उसके उनके पास इतने हो चुके हैं, या तो जैसे मैंने कहीं सुना था ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शन, नशा, ये 3 चीज ऐसे हैं जो उनके पूरे लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं बोलने के लिए कुछ और रीजंस होते हैं कि नहीं वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, बट ये जो आदतें हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द हैबिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हैबिट ऑफ नशा, नो, ये लोगों के लाइफ में क्या इफेक्ट ला रहा है, यूथ के लाइफ में क्या इफेक्ट ला रहा है, और इससे कैसे बचा जाए। कोई ऐसी हैबिट, जहां तक मैं जानता हूं 21 दिन में हम किसी काम को करें तो हमारी हैबिट चेंज हो जाती है, लगातार करें तो कैसे हम अपनी इन आदतों को, इन डिस्ट्रैक्शंस को चेंज करें। एज अ डॉक्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये मेरा
आप दोनों से लास्ट क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों तक जाए। नशा केवल यूथ तक ही नहीं है, नशा बहुत बड़े लेवल तक है। डिस्ट्रैक्शन केवल यूथ तक नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़े लेवल तक है और लोग इसकी वजह से अपनी सफल जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन डॉक्टर, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप डॉक्टर्स मुझे इसका आंसर दें, दर्शकों को इसका आंसर दें। आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर अजय शेष सर। ओके, अगर हम एक बात करें नशा, नशा बोलने पर किसी को लगता है शराब या कोई ड्रग्स यस सर। या कोई ऐसी चीज जिससे आदमी जो है वो जो नशे में आ जाए और फिर उलझलूल हरकतें करे या एबनॉर्मल हरकतें करे। ये यस सर। नशे को मैं एक व्यापक स्तर पे देखता हूँ। एक्सेस sir. ऑफ एनीथिंग जो आपको हार्म करे यस सर। इज नशा। यस ठीक है, सर। नशा आदमी क्यों करता है? नशा मतलब सिर्फ ड्रग्स या शराब ही नहीं है। सबसे पहले तो ये हम समझ लें, ठीक है, कि मेरा वीडियो ऑफ हो गया है। ओके, यस। तो नशा मतलब जो आम तौर पर जो चीजें समझी जाती वो नहीं है, ठीक है। यस सर। तेज गाड़ी चलाना, उससे कोई किक मिलना भी एक नशा है जो आपके Yes, लिए sir. हार्मफुल है। यस सर। करेक्ट है? यस कुछ सर। लोगों को तेज गाड़ी चलाने का नशा होता है कि नहीं होता है? यस सर। इज इट हार्मफुल? यस सर। इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? यस सर। यस। तो अगेन जो मैंने बोला, ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने का लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। यस सर। तो तेज ड्राइविंग भी एक नशा है, एबनॉर्मल खाना भी एक नशा है, एबनॉर्मल टाइप की शॉपिंग करना, खर्चा करना भी एक नशा है। आप समझे? यस ठीक सर। है। एबनॉर्मल टाइप का फिर सब्सटेंस अब्यूज करना भी एक नशा है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। यस सर। तो क्या होता है, ये कोई भी नशा किस प्रकार से होता है? यस सर। जब भी हम रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं और एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहां पे हम कुछ समय के लिए ही सही उस रियलिटी से पलायन कर लें, भले उससे मेरा नुकसान हो रहा हो, मानसिक या ये नुकसान हो रहा हो, पर कुछ समय के लिए वो जो रियलिटी से पलायन का एक फॉल्स सुख मुझे मिला, ठीक है, और जब वो फॉल्स सुख में ही मैं सॉल्यूशन देखता हूं, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सॉल्यूशन है, इसके बजाय ये एबनॉर्मल एक्टिविटी करने में जो मेरे को थोड़ी देर के लिए एक जो पलायन करके जो एक फॉल्स सुख मिलता है, उसमें जो सॉल्यूशन ढूंढता है, वो नशे का आदी हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर मुझे है, ठीक है, तो या तो मैं सॉल्यूशन साइड पे रहूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सेविंग करूं, ये करूं, कुछ तो भी करके अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करूं और जो है अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करूं, या फिर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो स्ट्रेस है उसको भुलाने के लिए अगर 2 पैग में मार देता हूं तो थोड़ी देर के लिए मैं उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भूल जाता हूं। जब मैं ये समझने लगता हूं कि ये भुलावट ही सॉल्यूशन है रादर देन वर्किंग ऑन द ओरिजिनल प्रॉब्लम, वहां पे मैं नशे का आदी हो गया, मुझे लग गई लत। यस सर। क्योंकि ये इजी है। यस सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट है, पैसे देके 2 पैग मार देना इजी है। यस जब सर। मुझे ये लगता है कि ये इजी है और यही सॉल्यूशन है, अब मैं नशे का आदी हो गया। यस सर। यहाँ पे लग जाती है लत, यस यहाँ सर। पे लग जाती है अलग चीजों। वो लत जो है कुछ अश्लील चीजों की भी हो सकती है, आप Yes, समझ sir. रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वो लत जो है वो एबनॉर्मल ड्राइविंग की भी हो सकती है। यस सर। वो डिस्ट्रैक्शन लत सर। जो, हाँ, वो लत Yes, जो है sir. एबनॉर्मल खाने पीने की हो सकती है। यस सर। वो लत जो है वो कुछ भी हो सकती है। यस सर। सो एडिक्शंस एंड नशा इज नॉट ओनली शराब एंड ड्रग्स, इट Yes, इज sir. एवरी एबनॉर्मल थिंग जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देती है। जब Yes, मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की आपको आदत लग जाती है और आपको Yes, वहां एक सॉल्यूशन, आप उसको सॉल्यूशन समझने लगते हैं, वो नशा होता है। ये चीज अगर आप समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। इस रूट पे अगर हम चोट करें तो कोई भी नशे से हम मुक्त हो सकते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स हियर, इट ऑल Yes, sir. स्टार्ट्स हियर। यस सर। थैंक यू सर, ब्यूटीफुल आंसर एंड सेम क्वेश्चन। एंड इस आंसर से कहीं ना कहीं मुझे बस एक बात समझ में आ रही है सर कि
इंसान अपने सारी चीजों का जिम्मेदार होता है एंड माइंड उन सब चीजों का सॉल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ भी करने से पहले अपने से 2 बार एटलीस्ट पूछना जरूर चाहिए कि हम जो ये हैबिट बना रहे हैं, आदतें बना रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं। एंड आई थिंक सेल्फ क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डॉक्टर अनिल सर से मैं सेम क्वेश्चन पे प्रकाश डालने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आप भी इसके बारे में आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर्वेश। यस सर। सर आई थिंक नेटवर्क के प्रॉब्लम होने की वजह से आपका वीडियो नहीं आ रहा, बट हम सभी आपको सुन पा रहे हैं सर, तो प्लीज अपने मैसेज को आप कन्वे करें। हो सकता है कि वीडियो अभी ऑफ हो गया हो या कुछ नेटवर्क कोई इशू है। प्रॉब्लम नहीं है सर, हम सुन पा रहे हैं आप आपको मुझे सर। सुन पा रहे हैं, मैं आपको Yes, बताना sir. चाहता हूँ। यस सर। यस नशा यस सर। केवल 3 चीज की वजह से होता है। अगर आपके पास 3P नहीं है, P3 नहीं है, तो आपको नशा अपने आप आ जाएगा। ये Yes, क्या sir. है 3P? पैशन, पर्पस और पैसा। यस सर। ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब जब लाइफ में कोई मिशन नहीं होता, पैशन नहीं होता, कोई गोल्स नहीं होते, कोई आउटकम नहीं होते और लाइफ में किक मिल नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो माइंड को तो मजा चाहिए ही चाहिए, माइंड को तो किक चाहिए ही चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीजें, ड्रिंक, सिगरेट या किसी और चीज का नशा, जैसे डॉक्टर अजय शेष सर ने बताया कि नशा का मतलब केवल एक चीज नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। यानी कि जब जब माइंड को कोई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं मिलेगी, उसके पास आउटकम नहीं होंगे, उसके पास पैशन नहीं होगा, उसके पास पर्पस नहीं होगा, तो पैसा तो अपने आप ही नहीं आएगा। और पैसा भी नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किस तरफ भागेगा? नशे की तरफ। तो जब जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा और आप रैंडमली मूव कर रहे होंगे, तो आज की डेट में 21st सेंचुरी में डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने आप पकड़ लेंगी, तो आप एडिक्शंस का शिकार बन जाएंगे, किसी भी प्रकार का नशा हो। तो अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं, एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं, पहले आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी लानी होगी कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं, मेरी लाइफ जा कहां रही है और मैं चाहता क्या हूं, मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है और मेरी लाइफ का अल्टीमेट आउटकम क्या है, मैं यहां से इस दुनिया से क्या करके जाना चाहता हूं। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो आपका माइंड आपको, जब आप बड़े विजन बनाएंगे, बड़े गोल्स बनाएंगे, बड़े आउटकम बनाएंगे, तो आपका माइंड छोटी छोटी चीजों में जो क्लिक ढूंढ रहा है, जो किक ढूंढ रहा है, जो पंगे ले रहा है बेफालतू के, वो सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास कुछ करने को है नहीं, ना आपने मिशन बनाया है, ना पर्पस बनाया है, ना ही गोल्स बनाए हैं, ना ही आपने अपने पैशन पे कभी काम किया, सोचा ही नहीं, पैशन फाइंड आउट ही नहीं किया। तो लाइफ में अपने आप वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग आ रही है। देखिए 2 चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें अपने आप आती हैं, पॉजिटिव चीजें लेनी पड़ती हैं। अगर आप डेली सुबह नहीं उठेंगे, लेट सोने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। अगर आप 10वें माले पर खड़े हुए हैं और वहां पर खड़े होकर सोचना शुरू कर दें मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, अपने आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10वें माले पर खड़े हुए हैं, टॉप पे। लेकिन अगर आप नीचे खड़े होके पहली मंजिल पे खड़े हैं या ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और सोचें कि मैं ऊपर चढ़ तो नहीं जाऊंगा, नहीं चढ़ पाएंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ आउटकम, लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन लीड्स टू एडिक्शन। हमें अपनी लाइफ को क्लियर करना है, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, और पैसा तो फिर एंड प्रोडक्ट है, अपने आप आपके पास आएगा। एग्जैक्टली सर। ब्यूटीफुल 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 सर। एंड एट लास्ट मैं आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप दोनों लोग अपने एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज दें हमारे दर्शकों को। एंड रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सेशन था, इसके लिए ये टाइम बहुत कम था, तो समय समय पे आप दोनों A2s, डायनेमिक A2s हमें समय देते रहे, A2A को समय देते रहे, और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो एक शॉर्ट मैसेज के संग मैं आप दोनों से अलविदा लेना चाहूंगा। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर अजय शेष सर कि प्लीज सर एक शॉर्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव जाने वाला, रिकॉर्ड हो रहा है, आगे भी बहुत सारी जगह प्रमोट होने वाला है। सो एक शॉर्ट मैसेज ब्यूटीफुल सर आपकी तरफ से। शॉर्ट मैसेज मेरा यही है। नंबर 1 sir. तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं फिर से कहूंगा कि इस बारे में आप ये करें। नंबर 1, हेल्थ, अपने हेल्थ को असेस करें, आपकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ से रिलेटेड आप जो है रेगुलर अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहें। नंबर 2, हाउ यू आर डिफरेंट, आप दूसरों से अलग कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता बता रहे थे। अगर हेल्थ का ये बेसिस, अगर हेल्थ ही कवर नहीं हुआ तो ये ऊपर की बातें सोच के कोई मतलब नहीं। पहले हेल्थ, उसके ऊपर मैं लोगों से डिफरेंट कैसा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंटली,
मैं लोगों से अलग कैसा हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी हुनर स्किल क्या है, उसको अगर मैं मोनेटाइज कर सकूं थ्रू अ जॉब और थ्रू अ बिजनेस, और उससे अपने अपने बिजनेस और जॉब को एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ जॉब अच्छा उसको मोनेटाइज मैं कर सकूं, ये तीसरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ के बाद में हाउ यू आर डिफरेंट एंड द एबिलिटी टू मोनेटाइज इट सो दैट आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज है। हेल्थ, हाउ यू आर डिफरेंट एंड हाउ टू मोनेटाइज योर टैलेंट। सो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो नोट कर लिया सर, और मैं दर्शकों से भी बोलूंगा कि आप सभी भी इसको नोट कर लें, क्योंकि ये तीन जितने भी गुरु मंत्रास थे, जितने भी हमें सारी चीजें डॉक्टर अनिल सर से, डॉक्टर अजय शेर सर से पता चली, गुरु मंत्रास हैं जो हमारे लाइफ के अलग अलग मोड़ पे हमें बहुत सारा हेल्प देने वाले हैं। नाउ डॉक्टर अनिल सर, प्लीज आप अपना एक शॉर्ट मैसेज हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं सर, और आने वाले यस जितने सर, भी लोग देखेंगे। यस सर। मैं कहना चाहूंगा गुरु मंत्र, यू यस हैव सर। ऑल द रिसोर्सेज और यू कैन क्रिएट देम। यस आपके सर। अंदर सारी क्षमताएं हैं या फिर उन्हें पैदा करने की क्षमता रखते हैं। यस सर। हम ज्यादातर दूसरों के जैसा बनना चाहने की कोशिश करते हैं, और जब उसमें नहीं बन पाते तो फ्रस्ट्रेशन आता है। यस अपनी सर। यूनिक ढूंढे, अपने ऊपर काम करें। हम क्या कर रहे हैं, एक गार्डन के अंदर हमने गार्डन बनाया है और नेट लेकर तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। यस सर। तितलियां कभी पकड़ में नहीं आएंगी। यस बेटर सर। है कि हम गार्डन पे काम करें, अपना गार्डन ब्यूटीफुल सा बना लें और तितलियों को आने दें। चाहे यस वो सर। आपका बिजनेस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, सारी चीजों की शुरुआत आपसे होती है। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी हैं। एग्जैक्टली सर। जो कंपनी आप चला रहे हैं वो आपसे चलती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डेवलपमेंट, दैट इज यस द सर। गुरु मंत्रा। और यस वो सर। सारी चीजें आपके पास हैं। तो मैं यस तो सर। हमेशा यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनिल सर एंड डॉक्टर अजय सर। मुझे तो बहुत सारा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन करने बैठा था, बिकॉज मुझे लर्निंग बहुत सारी मिली है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली फ्रॉम द नेक्स्ट आवर, फ्रॉम द नेक्स्ट मिनट, आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल दोज लर्निंग्स विच आई गॉट हियर। सो थैंक्स अ लॉट सर, एंड आई रिक्वेस्ट यू बोथ दैट आप फिर से ये A2 प्रोग्राम हमें प्रोवाइड कराएं जब भी आप फ्री हो सर। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और अगर हमें आपका टाइम मिलेगा तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ ही नहीं होगा सर। एंड डॉक्टर अजय, क्योंकि हमने अनिल सर के साथ इंटरव्यू पहले किए हैं, अजय शेष सर आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि एक और पर्सनल सेशन आप हमें प्रोवाइड कराएं। आपने जितना आज तक काम किया उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस आपसे करेंगे। सो अब हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी सर। एंड आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सारे लोगों की तरफ से। एंड दर्शकों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स मैं लाइन पे रहूंगा, सर लोग डिस्कनेक्ट होंगे, मैं लाइन पे रहूंगा, और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके आगे, सर्विसेज से रिलेटेड, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे दर्शकों की तरफ से, A2A की तरफ से, डॉक्टर अनिल सर एंड डॉक्टर अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे बीच आए और आपने हमें समय दिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक सबको यू सर। थैंक नमस्कार। यू थैंक यू अनिल सर, सर थैंक सर्वेश। यू अजय सर, थैंक यू सर। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो हम कुछ देर और आपके साथ हैं। यस सर। पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी आपके थ्रू अगर आती हैं, या वी आर यस सर। कोई पार्टिसिपेंट्स आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो अजय शेष सर एंड डॉक्टर अनिल सर कुछ मिनट्स के लिए हमारे साथ हैं। सो कोई भी कुछ बात भी करना चाहता हो और सर से तो कर सकते हैं, कोई भी दर्शक आप अपना हैंड रेज करें, अनम्यूट कर सकते। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि A2A की टीम प्लीज आप सबको अनम्यूट कर दें, जिन्हें भी बात करना हो उनके पास ऑप्शन हो वो बात कर सके। तो सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा? तो टीम A2A मुझे पर्सनल मैसेज में प्रोवाइड करा है, वो भी मैं सर लोग से पूछूंगा। जहां तक मुझे अपने बैच के सुभाष मौर्य सर दिख रहे हैं जिनके साथ मैंने अटेंड किया था सेशन, एंड डेफिनेटली सर आपका एक्सपीरियंस उस समय बहुत बढ़िया था। NLP के सेशन के समय में आपको मिला था सर। Hello. यस Good evening, sir. Good afternoon, sir. Thank यस you. सर।
सर वॉइस आपकी थोड़ी स्लो है सर, आप अगर वॉइस थोड़ी स्लो है सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, हेलो यस सर, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, थैंक यू। आज ये बहुत ही अच्छा सेशन था डॉक्टर अनिल गुप्ता सर का और डॉक्टर अजय शेष का, तो सर मैं का, थैंक यू यस बोलता सर, हूँ। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है A2A चैनल का, उनको यस धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे सारे पार्टिसिपेंट को बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अनिल सर और डॉक्टर शेष से मैं निवेदन करूंगा कि उनके जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स है वो किस तरह से उनको हम ले सकते हैं और किस तरह का वो हमें वो बेनिफिट दिलवा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में अगर बताएंगे तो मैं सोचता हूँ कि पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो श्योर सर, थैंक यू। ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू, श्योर थैंक यू। सर। हाँ सर, हमारे सारे जितने भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो मैसेज में जा चुके हैं। इसके बाद भी जो वीडियो हमारे A2A चैनल पे प्रमोट होगा उसमें भी सारे कांटेक्ट डिटेल्स रहेंगे। सो एनी अदर क्वेश्चन किसी भी पार्टिसिपेंट से, सुभाष सर एंड सारे पार्टिसिपेंट से मैं बोलूंगा कि आपके जितने भी इसके आगे के क्वेरीज हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आपको हमारे A2A चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से, लिंक्स के माध्यम से, फोन नंबर्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप तक हम पहुंचते रहेंगे। सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज आप अपने आप को अनम्यूट करके हैंड रेस करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, चैट, यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर्विस। थैंक यू सुभाष सर। एंड यस लाइक सर, मैं अलविदा लेना चाहूंगा डॉक्टर अनिल सर से, डॉक्टर अजय शेष सर से। इसके बाद हमारे पास जितने भी क्वेरीज आएंगे आपको पूरा जवाब मिलेगा A2A की तरफ से, क्योंकि A2A 24 घंटे रेडी है आपकी सर्विस के लिए। आपको ये सर्विसेज डॉक्टर अनिल सर एंड डॉक्टर अजय शेष सर तक भी हम पहुंचाएंगे A2A के माध्यम से। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन। किसी ने हैंड रेज किया है एंड आई थिंक रजनी राठौर सर, यस सर। हाँ, मैं राजेंद्र राठौर बोल रहा हूँ सर। Yes, मैं sir. आज जो है दोनों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अजय सर की मैंने लास्ट 5 डेज से क्लासेस अटेंड कर रहा था। ओके, तो नए डॉक्टरों ने जो है छत्तीसगढ़ के और ऑल इंडिया के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट उनको काफी जो है बढ़िया नॉलेज दिया है। और Yes, अनिल sir. सर के साथ हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है मतलब जो कोरोना का स्ट्रेस था वो हमने टोटली जो है मतलब कि कैसे हंसते हंसते निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। यस वी आर सर, गिविंग स्पेशल थैंक्स टू अनिल सर कि उन्होंने 3 महीने में जो है सबका जो है काफी मनोबल बढ़ा कर रखा। एंड Yes, sir. थैंक्स टू स्पेशल आज के प्रोग्राम के लिए आपको भी, अनिल सर Thank को you, भी, अजय शेष सर को भी वेरी स्पेशल थैंक्स फ्रॉम Thank ऑल द you, sir. पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। और हम सबके लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे, यही A2A की कोशिश है, यही पॉजिटिव हेल्थ जोन की कोशिश है एंड यही लाइफ चैंपियन सर का जो इकोसिस्टम है उसकी भी कोशिश है। सो थैंक्स अ लॉट सर। एंड अगर और कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज होगी जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ A2A चैनल पे ये वीडियो पोस्ट होगा, सारे लिंक्स वहां पे होंगे और आप हमसे बात कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमसे दूर जाने वाला है लेकिन हम आपसे दूर जाने वाले नहीं हैं, हम मिलते रहेंगे। और कोई बात करना चाहता है तो अगला, क्योंकि अब सर लोग हमसे अलविदा ले चुके हैं एंड यस आपकी कोई क्वेरीज है तो मैं उसका आंसर कर सकता हूँ, अदरवाइज आप हमारे चैट डिटेल से। यस सुनीता ध्रुव जी बात करना चाह रहे हैं। यस मैम बताइए। मैम सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी चीजें हमको दी, जीवन के हर पहलू में हम स्ट्रांग हो गए ऐसा लग रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। एंड डेफिनेटली आपके इसके जाते जो भी हमसे हमारी सर्विसेज जो आपको अच्छी लगी सो आप हमें जी, कांटेक्ट जी। कर सकते हैं सुनीता जी, मैम। जी। एंड हम हाँ रेडी जी। हैं, A2A टीम A2A रेडी है जी सर। आपको दोनों डॉक्टर्स के सर्विसेज तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड मैं अपने साइड से एक पर्सनली बात बोलना चाहूँगा कि एज अ यूथ मैंने जितना आज तक सोसाइटी को देखा है, जितना इन्वायरमेंट को देखा है, उसके हिसाब से बस इतना बोलना चाहूँगा। यस आज जो एक आउटकम मुझे समझ में आया मेरे लिए कि एवरीथिंग इज माइंड, एवरीथिंग इज माइंड। चाहे मैंने अनिल सर से जितनी भी आज तक ट्रेनिंग ली है, अजय शेष सर के बारे में जितना देखा है, या जितनी बातें अभी इंटरव्यू हुई हैं, मुझे बस इतना पता चला एवरीथिंग इज अ माइंड, राइट। एंड अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है तो हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइंड को, लेकिन सबको आता नहीं है, सबको पता नहीं है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना कैसे है, स्ट्रांग करना कैसे है, राइट। सो उसके लिए दैट NLP, PNP और ये जो हमारी लाइफ कोच है डॉक्टर अजय सर, जो लाइफ कोच है, ये दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हमारे गाइडेंस के लिए। सो डेफिनेटली आप सबका स्वागत है हमारे A2A चैनल में। A2A चैनल भी फॉलो करना ना भूलें, उसको भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम केवल पॉजिटिविटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स ही लेके आते हैं। सो लेट्स प्रमोट A2A ऑल्सो। थैंक यू ऑल एंड मिलते हैं आप सबसे जल्दी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सर्विस जी, थैंक यू।